डंडौत बंधन अनेक बार, डंडौत बंधन अनेक बार। सर्व कला समरथ डोलन ते राखो प्रभु। नानक दे कर हथ सतनाम। धन वाहे गुरु साहिब जियो। बाल जवानी अर बिरद फुन, बाल जवानी अर बिरद फुन। तीन अवस्था जान, कहो नानक हर भजन बिन। बिरथा सब ही मान, बाल जवानी अर बिरद फुन। तीन अवस्था जान, कहो नानक हर भजन बिन। बिरथा सब ही मान। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जुगो जुग अटल, साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी, जिस रोज़ाना सतगुरु गुरु तेग बहादुर महाराज जी दे अमृत शलोकां दी विचार हजूर दी बख्शी हुई सोझी अनुसार आपां कर रहे हैं। अज जो विचार अधीन शलोक है, इस दा पाठ आप जी ने सरवण कीता है। हजूर दा ये 35वां शलोक है। आओ इस अमृत बचन दे अखरी अर्थ और हजूर ने जो उपदेश दृढ़ कराया है समय अनुसार उस दी व्याख्या आपां कर सकीए। अदब सहित समूह संगत उच्चारण करो जी। सतनाम श्री वाहे गुरु जी। करो बख्शिश, फिर उच्चारण करो जी। सतनाम श्री वाहे गुरु जी। सतगुरु गुरु तेग बहादुर महाराज जी ने अज दे इस अमृत शलोक अंदर बख्शिश कीती है कि मनुखी जिंदगी शब्द जां उम्र दे 3 पड़ाव, जिस विच बचपन, जवानी और बुढ़ेपा है। हजूर ने इस विच बख्शिश की
ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਪੜਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਹਰੀ ਕਾ ਭਜਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨੇ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਇਹ ਬੇਕਾਰ ਨੇ, ਇਹ ਵਿਅਰਥ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਆਰੰਭ 'ਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਾਣੀ ਨੇ, ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਪੜਾਅ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੁਢੇਪੇ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਉਹ ਬਚਪਨ, ਜਵਾਨੀ ਔਰ ਬੁਢੇਪਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਤੇ ਜਵਾਨੀ ਬੁਢੇਪਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਇਆ, ਗੱਗਾ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਣ ਰਵੋ, ਸਾਸ ਸਾਸ ਜਪਨੀਤ, ਕਹਾਂ ਬਿਸਾਸਾ ਦੇਹ ਕਾ, ਬਿਲਮ ਨਾ ਕਰਿਓ ਉਮੀਦ, ਨਹਿ ਬਾਰਕ ਨਹਿ ਜੋਬਨੈ, ਨਹਿ ਬਿਰਦੀ ਕਛ ਬੰਦ, ਉਹ ਬੇਰਾ ਨਾ ਬੂਝੀਐ ਜਬ ਆਏ ਪਰੈ ਜਮ ਫੰਦ। ਕੀ ਬਚਪਨ, ਕੀ ਜਵਾਨੀ, ਕੀ ਬੁਢੇਪਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਮਾਂ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬਚਪਨ, ਜਵਾਨੀ ਤੇ ਬੁਢੇਪੇ ਦੇ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਇਹਦੇ ਆਖਰੀ ਅਰਥ ਬਾਲ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਆਪ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਬਚਪਨਾ, ਬਾਲਪਨੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਉਮਰ, ਜਵਾਨੀ, ਪਰ ਜੋਬਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਲ, ਜਵਾਨੀ, ਅਰਧ ਅਰਥ ਅਤੇ ਬਿਰਧ ਫੁੰਨ, ਫੁੰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਹੈ ਫੁੰਨ ਦਾ ਅਰਥ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਅਰਥ ਇਉਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਾਲ, ਜਵਾਨੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੁੰਨ ਲਫ਼ਜ਼ ਭਾਵੇਂ ਕਾਵਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਿਰਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਕਰ ਲੱਗਿਆ ਇਉਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਾਲ ਬਚਪਨ ਜਵਾਨੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬੁਢੇਪਾ। ਅਰ ਦੇ ਅਰਥ ਇਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਫੁੰਨ ਲਾ ਕੇ ਅਰਥ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਥ ਹੋਣਗੇ ਬਾਲ, ਜਵਾਨੀ ਅਰ ਬਿਰਧ ਫੁੰਨ। ਮਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਫੁੰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਫਿਰ, ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ ਬਚਪਨ, ਜਵਾਨੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬੁਢੇਪਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਾਲ, ਜਵਾਨੀ ਅਰ ਬਿਰਧ ਫੁੰਨ, ਤੀਨ ਅਵਸਥਾ ਜਾਨ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਪੜਾਅ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਰ ਭਜਨ ਬਿਨ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਰੀ ਦੇ ਭਜਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਬਿਰਥਾ ਸਭ ਹੀ ਮਾਨ। ਇੱਥੇ ਸਭ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਹੀ ਅਰਥ ਕਰ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸੁਣਿਓ ਕਿ ਬਾਲ, ਜਵਾਨੀ ਅਰ ਬਿਰਧ ਫੁੰਨ ਤੀਨ ਅਵਸਥਾ ਜਾਨ। ਇੱਥੇ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਤਿੰਨ ਅਵਸਥਾਵਾਂ, ਬਚਪਨ, ਜਵਾਨੀ ਅਤੇ ਬੁਢੇਪਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬੁਢੇਪਾ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਰ ਭਜਨ ਬਿਨ, ਬਿਰਥਾ ਸਭ ਹੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਸੇ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਕਿ ਸੁਲਤਾਨ ਹੋਵਾ ਮੇਲ ਲਸ਼ਕਰ ਤਖਤ ਰਾਖਾਂ ਪਾਓ, ਹੁਕਮ ਹਾਸਲ ਕਰੀ ਬੈਠਾ ਨਾਨਕਾ ਸਭ ਵਾਓ, ਮਤ ਦੇਖ ਭੂਲਾਂ ਵਿਸਰੈ ਤੇਰਾ ਚਿਤ ਨਾ ਆਵੈ ਨਾਉ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਚਨ ਆਇਆ, ਸੁਲਤਾਨ ਹੋਵਾ ਮੇਲ ਲਸ਼ਕਰ ਤਖਤ ਰਾਖਾਂ ਪਾਉ,
हुक्म हासिल करी बैठा नानका सब वाओ। इत्थे भी जिहड़ा सब लफ्ज आया है, शब्द आया है, कुछ सूझवान टीकाकारां ने इस सब दे अर्थ फिर 3 पदियां नाल 4 पदियां नाल जोड़ के कीते। मोती ता मंदर वाला, धरती ता हीरे लाड़ जलती, सिद्ध गोवा सिद्ध लाई, अखीर ते सुल्तान गोवा मेल लश्कर। मेरे कहण तो मुराद ये जिहड़ा सब ही शब्द है जां सब ही आया है, इहदा मतलब हो गया जिहड़ियां पिछे 3 अवस्थावां दा जिक्र कीता, बाल जवानी और विरध पुन, 3 अवस्था जान, कहो नानक हर भजन बिन, बिरथा सब ही मान। इन्हां तिन्नां नूं भावें बचपन जवानी और बुढ़ेपा है, ये तिन्नां नूं व्यर्थ समझे पार ब्रह्म परमेश्वर दा चिंतन नहीं कीता। इस विच सिमरन तो विहूणा जिहड़ा वक्त लंघिया वो कोई भी अवस्था सी, गुरु जी ने कहा उहदा अर्थ कोई नहीं। गुरु साहब दी अमृत बाणी च पिछले दिनों तो जदों असीं विचार करते आ रहे हाँ, मैं आपनूं अर्ज कीती सी काफ़ी श्लोक ऐसे ने जिन्हां विच दोहराओ भी है, पर गुरु ग्रंथ साहिब दा खजाना इन्ना भरपूर है कि उस दोहराओ दे विच उस रिपीट किए हुए शब्द दे अर्थ भी, व्याख्या भी सानू गुरु ग्रंथ साहिब दे खजाने विचों नवीं मिलेगी। इत्थे सतगुरु ने 3 अवस्थावां कहियां, बचपन जवानी ते बुढ़ेपा। ते पिछले दिनी दास ने एक बेनती की सी कि असल च सतगुरु ने थां पर थां ते इस इंसान नूं सिमरन नाल जोड़न दे लई, पार ब्रह्म परमेश्वर नाल जोड़न दे लई, उस पार ब्रह्म परमेश्वर दी इबादत नाल जोड़न लई कई उदाहरणां और हकीकतां तो भी जाणू कराया उदाहरणां दे के। जिवें गुरमत अनुसार जां अध्यात्मकता परमार्थ, मैं फिर शब्द वरतांगा, मैं साइंस लफ्ज़ नहीं वरत रहा। गुरमत अनुसार गुरु दे शब्द अनुसार हर मनुख जिहड़ा है, हर जीव जिहड़ा है, खास करके इंसानी जामा, इस विच कोई रंग, कोई नस्ल, कोई धर्म, कोई मजहब, कोई कर्म, इहदा जिक्र नहीं। हर इंसानी जामा वो दरअसल माता दे उदर दे विच जे वो जीवित रहिंदा है, तो मैं अर्ज की गुरु ग्रंथ साहिब विच एक नहीं अनेकों वारी ये प्रमाण दिते। कबीर साहिब पढ़ो, गुरु अर्जुन देव, गुरु नानक साहिब, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, भगत धन्ना जी तक, हुण जिन्ने महापुरुख ने वो ये जदों मनुखी शरीर की बनतर की गल करते हैं तो वो ये गल स्वीकारते हैं कि इंसान दे मां दे उदर दी अग विच, उस पानी विच जिथे ये उर्दमुखी है, पुट्ठा लटकिया है, उत्थे जे इनू जिंदगी अध्यात्मक मिल रही है तो केवल परमात्मा के चिंतन करके, उहदे सिमरन करके, उत्थे लगी हुई लिव का जिक्र किया जाता है, उत्थे जुड़ी कोई सुर का जिक्र किया जाता है। इहदा मतलब कि इंसान जन्म तो पहला उहदी सुरत उस तरह जुड़ी हुई है, पर जदों जन्म हुंदा है थोड़ा जिहा, क्योंकि अस पहला सी बाल अवस्था, फिर जोबन, फिर बिरध, दोनों पक्ष रखांगे। इहदा उही पक्ष व्यर्थ जानदा ते ये भी नहीं आपां केवल व्यर्थ दे अर्थ करिए, वो भी पक्ष 3 अवस्थावां दा रखांगे जिहदे विच इन्हां अवस्था विच भगतां ने, महापुरखां ने, गुरमुखां ने इबादत कर करके रब दी रहमत लई है। अर्ज करा हुण जन्म हुंदा है जदों इंसान दा, उस दिन असीं ये बचन पढ़िया सी कि पहले पैरै रैण कै वणजारिया, मित्रा हुक्म भया गरबास, उर्द तप अंतर करे वणजारिया, मित्रा खसम सेती अरदास। ये फिर शब्द सुनियो कि उत्थे तू इबादत कर रहे, सिमरन कर रहे, खसम सेती अरदास बखाना, उर्द ध्यान लिव लागा, उर्द ध्यान लिव लागा। तू पुट्ठा जरूर है पर तेरी ध्यान, तेरा लिव जिहड़ी है वो पार ब्रह्म परमेश्वर विच है। पर जदों तेरा जन्म होया है इस उत्ते कोई संसार की मर्यादा नहीं लागू हुई। अगले बच्चे ने उर्द ध्यान लिव लागा, नाम मिर्जाद आया कल भीतर, बौड़ जासी नांगा, कि तेरे ते कोई मर्यादा है, किहड़ा धर्म का चिन्ह लैके तेरा जन्म होया। मैनू याद है कई सज्जने दे अर्थ ये भी करते कि ये सलीका, हुण आदमी तन ते कपड़े पांदा है,
ये संसार की एक मर्यादा है, ये इस विच रहना जरूरी है। कई बंदे चलो इस गल नूं नहीं पसंद कर रहे, वो अपने ढंग नाल जिंदगी जींदे आ, पर इत्थे मर्यादित है, मर्यादा विच जिंदगी जी रहे। पर जदों जन्म हुंदा किहड़ी मर्यादा है जी? अज तक कोई इंसान मां दे पेट विचों कोई मर्यादित हो के कपड़े पा के तन ते आया है? महाराज जी ने क्या बेमर्यादा आया। जो कोई तू समाज में सिखाना है वो नहीं, ਉਹਦੇ तन उत्ते कोई बस्तर नहीं, ਉਹਦਾ बदन नहीं ढकिया होया। पर जिहड़ी मैं बेनती कर लगा, उर्द ध्यान लिवलागा ਉਹਦਾ ਉੱਥੇ ध्यान लग्या। पर जदों ये जन्म हुंदा है, असी बाणी चों पहला ये अवस्था लांगे बचपन, जन्म हुंदा है, इनू बाहर दी हवा लगदी है। जन्म वेले ये सच्ची मुच्ची जदों ये 2 3 4 दिनां दा हुंदा है, ध्यान नाल देखिए बच्चे वल, जदों सौंदा अखां इन्नियां घुट के बंद कीतियां हुंदियां ने कि जिवें कोई जोगी समाधि विच बैठा होवे। बिल्कुल उस तरह ये शरीर की मुद्रा हुंदी। पर जदों ये संसार च अगे विचरदा है, माँ अपना दुध पिआंदी है, परिवार दे जी चुकदे आ। गुरमत कहंदी है कि ज्यों ज्यों इसे जीव की बिरती बाहर मुखी होई जाती है, त्यों त्यों सच एवे कि ये अंदर खिंडा पैदा हो जाता है। उस पासे टुटी जा रहे, संसार वाले पासे प्रवृत्त हो रहे। इनू सतगुरु ने बाणी विच एक बचन कहा, विचों गर्भ है निकल आया, गर्भ चों बाहर आया, खसम विसार, ये बचपन है, खसम विसार दुनी चित लाया। जेड़ी लिव अगे अंदर लगी सी वो टुटनी शुरू हो गई, खसम नू विसार दिता, ते जेड़ा चित अगे एकाग्र सी उस चित विच दुनिया का चिंतन चलन लग पिया। महाराज शब्द वरत रहा, विचों गर्भ है निकल आया, खसम विसार दुनी चित लाया। हजूर ने इस बारे होर बख्शिश की। एक गुरु नानक साहब का बचन है कि जदों बच्चे की सुरती बाहर मुखी हुंदी, पहला खिडौणियां वाल खेलों वाल तुरदा है। गुरु नानक साहब का पता शायद उस दिन पढ़िया सी, दूजा पैर है रैण कै वणजारिया मित्रा, विसर गया ध्यान। आख है बचपन व्यर्थ होने लगा। दूजा पैर जिंदगी का आया तो ये अंदरों परमात्मा का ध्यान विसर गया, ये अंदरों चिंतन चला गया। दूजा पैर है रैण कै वणजारिया मित्रा, विसर गया ध्यान, हथों हथ नचाइए वणजारिया मित्रा, ज्यों जसदा कर कान। इस तरह बच्चे नूं हथ च लिया माँ ने, सारे हथों हथ नचाइए, उन्होंने थले कोई बैठन नहीं देंदा। कदी माँ चुकदी, कदी बाप चुकदा, कदी दादी, कदी दादा, कदी परिवार दे जी, कदी आंढी गवांढी। उस बच्चे नूं जमीन ते मंजे ते पैण हथों हथ नचांदे ने उन्होंने। ते महाराज कहंदे ने इस तरह लाड माँ करदी है जिवें जशोधरा जी कान नूं कृष्ण जी नूं लाड लडांदे। इहदा मतलब बहुत उत्तम नूं समझ ली। दूजा पैर है रैण कै वणजारिया मित्रा, विसर गया ध्यान, हथों हथ नचाइए वणजारिया मित्रा, ज्यों जसदा घर कान। हथों हथ नचाइए प्राणी मात कहे सुत मेरा, ज्यों ज्यों उन्होंने नचारी है उन्होंने लाड़ लड़ांदी, वार वार उन्होंने शब्द कहती है मेरा मेरा मेरा। सच ए जे पहली कान च फूक ही माई मार दी पई मेरा मेरा। मैं अगे बेनती करांगा कि कुछ मावां ऐसियां ਜਿਹੜੀਆਂ बालपन भी बच्चे का व्यर्थ नहीं जान देंदियां, उन्हां दा जिक्र बाणी च भी है, गुरु ग्रंथ साहिब के शब्दों में भी है। हजूर सच्चे पातशाह जी कहते हैं, हथों हथ नचाइए प्राणी मात कह सुत मेरा, चेत अचेत मूड मन मेरे, अंत नहीं कछ तेरा। कहते मूर्ख मना, वो अचेत बंदा तू चेते कर, माँ तू याद कर, जिन्हों तू मेरा मेरा कह रही है तेरा नहीं। वैगुरु ये कन्ना च मेरे मेरे दी फूक ना मार, क्योंकि इसने तेरा नहीं रहना। उंज वैसे भगत जी का एक बचन है, इनू नैगेटिव सोच लैके नहीं चलना, ये हकीकत है इंसानी जामे च वापरना है। भगत कबीर साहब जी का बचन है, चलो बच्चों के लोग जन्मदिन मनाते आ, बड़े खुश होंगे आ, बड़ा पैसा लाते आ, बहुत खुशी प्रगट करते। उंज गुरु ग्रंथ साहिब विच महाराज जी का एक बचन है, कबीर साहब का पहला शब्द ही श्री राग च, वो कहते हैं माँ जन्म तो बाद, बच्चे के जन्म तो बाद हर साल जो जन्म आता दिन आता खुश होंगी, इन्ने साल मेरा पुत्र वड्डा हो गया, इन्ने साल का हो गया,
मेरा राजा पुत्र, मेरा नेता पुत्र। गुरु साहब ने कहा इत्थों तक कि माइयां कान कह कह के, कृष्ण कह कह के बच्चों को कृष्ण नाल तुलना दे के लड़ांदियां। कबीर साहब कहते ने जदों माई कहती है मेरा पुत्र इन्ना वड्डा हो गया तो जमदूत मौत इहदियां गल्लां सुनदी है ते इहदे लाड नूं देख के हसदी है ते कहंदी झल्ली माई नूं पता ही नहीं कि जिन्हों मेरा मेरा कह के आवाज़ां मारदी है, बचपन च इहनूं जोड़दी नहीं पई, मेरा मेरा कह के पुकारदी पई है, इहनूं पता ही नहीं कि तेरा बच्चा वड्डा नहीं हो रहा। हर साल जिस दिन तू इहदा जन्म मनानी है उस दिन तेरे बच्चे दी उम्र मिली हुई उम्र विचों 1 साल घट जाता है। ये वड्डा नहीं हो रहा, छोटा हो रहा, घट रहा। कबीर साहब जी का बचन है, जननी जानत सुत बड़ा होत है, इतना कू ना जाने जे दिन दिन अवध घटत है। इन्ना पता ही नहीं कि एक वाधा नहीं घट रहा है। अगे महाराज जी का बचन है, इतना कू ना जाने जे दिन दिन अवध घटत है। मोर मोर कर मेरा मेरा कह के लाड लड़ांदी पी, बचपन कढ़ दिता। मोर मोर कर अधक लाड तर, पेखत ही जमराओ हसै। जमराज हस रहा है, कहता वेखो कि माँ इस बच्चे की सुरत नूं खंडांदी पई। वो हस के कहता उम्र घटदी पई है, वड्डा कह रही है तो ये मेरा मेरा कह रही है, पर यदा है नहीं, ये एक दिन चले जाना है। मैं बेनती करा गुरु नानक साहब का यह बचन कि किवें बचपन विच ध्यान विसरदा है। हजूर ने फरमाया गुरुदेव जी ने कि दूजा पैरै रैण कै वणजारिया मित्रा विसर गया ध्यान। तो यह भी सच, जे किते जेड़ी लिव मां दे उधर भी सी ना, जे बचपन विच जवानी विच बुढ़ेपे विच जिहो जी लिव लै के इंसान जम्मिया, जे इहो जी लिव नाल इहदा अंत हो जाए तो गुरु ग्रंथ साहिब कहते हैं इस दी जिंदगी की कीमत ही कोई नहीं पा सकता। कबीर साहब का एक सलोक है, कबीर जैसी उपजी पेड़ ते। चलो ठीक है, गुरमुख टीकाकार अर्थ ही कर देने जी कि जिमें एक रुख बचपन में छोटा रुख पेड़ा लचकीला हुंदा, कोमल हुंदा, जेड़े पासे करो मुड़ जाता है, झुक जाता है। पर अध्यात्म नूं कमान वालियां दे अर्थ पता है कि कीते कि जैसी उपजी पेड़ ते, जिस वेले इहदी शुरुआत हुई इंसान दी, जिस वेले दी जड़ सी, जिमें इंसान दा अंदर अंदर दी सुरत मां दे पेट भी जुड़ी सी, जे किचे ओ उम्र बचपन विच भी वो लिव रहिंदी, जवानी विच भी रहिंदी, अखीरले अंतले सवास तक निभ जाती है। तो रत्ना करोड़ा करोड़ा रत्ना दा सी। कबीर जैसी उपजी पेड़ ते जो तैसी निभ है औड़, हीरा किसका बापुरा पूजे हैं पूजन रतन करोड़। वो ओदी कोई मुकाबला कर ही नहीं सकता। इत्थे सतगुरु ने शब्द वरत्या भाई कि दूजा पैरै रैण कै वणजारिया मित्रा विसर गया ध्यान। हथों हथ नचाइए वणजारिया मित्रा ज्यों जसदा कर कान। हथों हथ नचाइए प्राणी मात कह सुत मेरा, चेत अचेत मूड मन तेरे मेरे, अंत नहीं कछ तेरा। जिन रच रचिया तिसै न जाने, मन भीतर धर ज्ञान। कहो नानक दूजै पहरै प्राणी विसर गया ध्यान। बचपन में ध्यान खिंड गया। बच्चा जिहड़ा पहला दुध पींदा रहा, फिर सुध हो गई, फिर संसार विच प्रवृत्त हो गया। तो कई बारी एक पहली गल जो बच्चा परिवार च देखेगा वो कुछ बाहर मुखी ज़्यादा हरकत करेगा। गुरु साहब जी बचन करते हैं कि जे बच्चे नूं शुरुआत विच ही आपां अध्यात्मक पर यह गल याद रखो कट्टड़ता बंदिशां संकीर्णता नहीं, जे उन्हों प्रेम सहित आपां बाणी शब्द नाम उहदे वल जोड़ना शुरू कर दईए, क्योंकि बाल अवस्था का वक्त इन्ना कीमती है बाकी जिंदगी नालों। जिन्नी सरलता, जिन्नी निर्मलता, जिन्नी निर्वैरता, जिन्नी निरछलता बाल अवस्था विच हुंदी है। प्यारिओ याद रखियो, ज्यों ज्यों बंदा अगे वधदा है वो निर्मलता ही, वो निरछलता, वो निर्वैरता, वो अंदर भोलापन नहीं रहिंदा, चलाकी वरतन लग पैंदा, चंचल हो जाता है। कल भी दास ने एक बेनती की सी, पायो बाल बुद्ध सुख रे। हजूर कहते ने बाल बुद्धि विच जिहड़ा सुख है अंदर दा टिकाओ जवानी च नहीं बनता पिया।
पायो बाल बुद्ध सुख रे। क्यों जी खरक सोग हान मिरत ओदे सामने खुशी होवे, ओदे सामने गमी होवे, ओदे सामने घाटा होवे, ओदे सामने मौत होवे, ओदे सामने दुख होवे, ओदे सामने सुख होवे, उस बच्चे ते कोई असर नहीं कर रहा। मैं अज भी जदों असीं देखने हैं, चलो बाहर मुखी गल, मजदूर तुरे जा रहे अपने घरां नूं, आप सारे देखते पे। मैं कई बारी सोचना कि उस बच्चे नूं कोई पता नहीं कि माँ तुरी जा रही है, उन्हें झोली च पाया और आराम नाल सुता है, बाप ने मोढे ते चुक्या, उस बच्चे नूं कोई पता नहीं कि मुसीबत की बनी हुई। हजूर कहते हैं असल च बच्चे दा अंदर इन्ना भोला, इन्ना निरछल, इन्ना निर्मल है, इन्ना निर्वैर है, इत्थों तक कि उन्होंने तां ये भी नहीं पता लगता ये बलदी कोई जिहड़ी अग है ये वो रंग समझ के फड़दा है, बलदे कोई कोलियां नूं फुल समझ के पकड़दा है, ते सच ये वे सप जमीन ते तुरिया जांदा है प्यारे, उन्होंने खिडौना समझ के पकड़दा, उन्होंने ये भी नहीं पता सप की ते अग की, दुश्मन की ते मित्र की, मेरा की ते तेरा की, अंदर बिल्कुल सरल है। हजूर कहते खरक सोग होवे, घाटा होवे, उहदे वास्ते वाधा होवे, दुख होवे, सुख होवे, उहदा चित्त समसर रहिंदा है। इसे करके गुरु ग्रंथ साहिब जी ने एक भगत दी भगती नूं बच्चियां दी भगती ना बचपना क्या उन्होंने आप जी एक पाठ कर दो, धन्नै सेविया बाल बुद्ध तरलोचन गुरमिल भई सुध। आ जिहड़ा धन्ने सेविया बाल बुद्ध अवस्था बड़ी निरछल है। मैं बेनती करा कि बचपन विच जे सिमरन वाल जुड़ जाइए, ये कहिए जी नहीं हो ही नहीं सकता, नहीं, बचपन विच जो अंदर दी तख्ती ते पूरने पा देंगे, मरदे दम तक वो पूरने छेती कोई मिटा नहीं सकता। आओ मैं एक दो बेनतियां करांगा। हुण एक तां पक्ष ये वे कि बच्चे नूं रब भुल गया, खेड च लग गया, ते अज तां इन्ना प्रवृत्त हो चुका है बाहर मुखी, क्योंकि पहला इन्ना नहीं सी जरूर पर इन्ना नहीं सी। जे गुरु जी ने क्या विसर गया ध्यान, अज असी अपने घरां झाती मार के देखिए प्यारिओ, सच ये वे कि 1.5 2 साल के बच्चे जदों थोड़ा जिहा चलन लग पैंदे आ, उन्हां दियां उंगलां आ फोन के उत्ते चलदियां पईआं ने, आईपैड उत्ते चलदियां पईआं ने। मैं ये नहीं कि मैं नहीं वरदा, मैं भी वरतना, बाणी पढ़ ली वरतना, पर मैं आप नूं बेनती करांगा कि वो इन्ना क बाहर मुखी प्रवृत्त हो गया। अज पंजाब दे किसी बच्चे नूं पुछो गुल्ली डंडा की है, कोई पता नहीं, उन्होंने निक्कियां खेडां दा कोई पता नहीं, लक्कड़ वाले रेड़ियां दा कोई पता नहीं, क्योंकि संसार ने सच्ची मुच्ची ये मशीन जी बना के रख दी आर्टिफिशियल बंदे। बाल अवस्था बड़ी कमाल दी है। हाँ, बचपन विच मैं 2 उदाहरण, वैसे तो गुरु ग्रंथ साहिब विच 2 महापुरखों का जिक्र है। मैं अज भी सवेरे गल कर रहा सा सज्जन नाल, एक है वो भगत गुरु ग्रंथ साहिब विच जेड़े बाणी दे रचयिता ने, बाणीकार ने, उन्होंने आप भगत कहने। एक वो भगत ने जेड़े बाणीकार नहीं पर पुरातन होए ने, गुरु ग्रंथ साहिब ने उन्होंने अपने शब्द विच थां दिती है, कली थां नहीं दिती, इत्थों तक कि बजुर्गां नूं, जवानां नूं, पूरी मानवता नूं इक्को गल कहिए, जे परमात्मा की भगती करनी है ना, तो उन्हां 2 बच्चों की करो जेड़े राज परिवार विच पैदा हो के रब की इबादत वाल जुड़ गए। उन्हां दा जिक्र आप सारे जानते हो, राम जपो जी ऐसे ऐसे, ध्रुव प्रहलाद जप्यो हर जैसे। है तो बच्चे ना जी, बचपन के ध्रुव की तो उम्र भी दसी मारे ने गुरु ग्रंथ साहिब विच, 5 बरख को अनाथ ध्रुव बार कर सिमरत अमर अटारे। इतों तक नामदेव ने क्या, जहाँ जहाँ ध्रुव नारद टेकै नैक टिकावो मोहे। परमात्मा जिस थां ते ध्रुव नूं तू टिका दिता, नामदेव की बेनती मैनू भी अवस्था बख्श दे। महाराज ने इन्हां 2 बच्चों का जिक्र किया है, भगत ने, इन्होंने इबादत की। मैं एक उदाहरण सिर्फ देन लगा, क्योंकि बड़ी बड़ी जिक्र ध्रुव जी का आउंदा है, प्रहलाद जी का आउंदा है, तो इस चीज़ नूं भुल्लो ना, सीखो। गुरु ग्रंथ साहिब नूं पढ़िए ते ध्यान नाल पढ़िए, इस तरह ना पढ़िए सिलेबस का, इस तरह पढ़िए मैं इनू पढ़ के अंदर नूं पढ़ना है, क्योंकि इनू पढ़न तो बिना अंदर पढ़ना ही नहीं आउंदा बंदे। गुरु ग्रंथ साहिब
प्रकाश असीं कहने मनाने कि गुरु ग्रंथ साहिब का प्रथम प्रकाश किया गुरुदेव ने श्री हरमंदर साहिब। पर गुरमुखो एक प्रकाश बाहर दा है, एक प्रकाश अंदर दा है। बाहर दे प्रकाश नाल ही अंदर दे प्रकाश की समझ पैनी है। ये नहीं कि असी नास्तिकता बुलाई जी नहीं, अंदर सब कुछ अंदर है, पर बाहर नूं असी इग्नोर नहीं कर सकांगे। मैं फिर अर्ज करा, हुण इस बच्चे दा अंदर कैसा है? माँ दी जे माँ आप जुड़ी है, ओदी असीस बच्चे नूं जरूर जोड़ेगी। मैं तो गुरु अर्जुन देव जी का वो शब्द जिहड़ा अक्सर सज्जन जन्मदिन ते पढ़दे आ, पूता माता की आसीस निमख ना बिसरो तुमको हर हर सदा भजो जगदीश। किड्डी वड्डी माँ की असीस है। कहंदी ओ मेरे बच्चिया, मेरे पुत्र, माँ की यही आसीस है तेनू, अख झमकन जितना समा तेनू वाहिगुरू जी का जगत के मालक का नाम ना भुले। पुत्र चेते करेगा तो पितरां दा भला हो जाएगा। ये शब्द की शुरुआत है, जिस सिमरत सब किलविक नास है, पितरी होए उधारो। पुत्र तू जपेगा तो पितर भी तर जाणगे, तेरे बजुर्ग भी तर जाणगे। इबादत विच इन्नी ताकत है। जिस सिमरत सब किलविक नास है, पितरी होए उधारो। सो हर हर तुम सदी जापो, जाका अंत न पारो। पूता माता की आसीस निमुख न बिसरो, तुमको हर हर सदा भजो जगदीश। अगे है अमृत पीवो सदा चिर जीवो, हर सिमरत आनंद अनंता। हर सिमरत आनंद अनंता, रंग तमाशा पूर्ण आशा, कबै ना व्यापै चिंता। अगे देखो माँ किड्डी वड्डी दात मंगदी पई, परमात्मा ते असीस भी दे रही। कहंदी बच्चा तेरा मन भवरे वर्गा होवे, रब मेहर करे तेरा मन डड्डू वर्गा ना हो जाए। अगलियां तुकां ने, भवर तुम्हारा ए मन होवो, हर चरना हो कौला। तेरा अंदर भवरे वर्गा होवे। ते भवरा ते डड्डू दोवें कमल फुल दे, भवरा दूरों हुंदा है, डड्डू कोल है। पर सच ये वे डड्डू चिक्कड़ खाई जाता है। इत्थे माँ ने क्या तेरा मन भवरा बने, गुण ग्राहक बने। भवर तुम्हारा ए मन होवो, हर चरना हो कौला। नानक दास उन संग लपटायो, जो बूंद है चात्रिक मौला। मैं सिर विषय तो दूर ना जाके बाल अवस्था में अर्ज की। एक पक्ष है ध्यान विसर गया, बंदे की जिंदगी गई। दूजा पक्ष है कि अंदर बड़ा निर्मल है। जो कुछ अंदर टिक गया, वाहिगुरू तरस करे, चंगा बीज बीजा गया तो रुख बुढ़ेपे तक छां देगा। मैं ध्रुव का जिक्र कर रहा सा। राजा उतानपाद है ते दो इस दियां राणियां ने, सुनीति ते सुरुचि। जिहड़ी सुनीति है ये ध्रुव की मां है, ते जिहड़ी सुरुचि है ये पुत्र का नाम उत्तम है। राजा उतानपाद असल च इस सुरुचि राणी नूं, उत्तम की मां नूं बहुत दिलों मुहब्बत करता है। ध्रुव की मां नूं इस तरह नहीं। आप सिर्फ आना है कि बचपन विच वजी कोई ठोकर कित्थों तक ले जाती है। तो ये तुसीं देखियो कि इस विच मां का किड्डा बड़ा रोल है। ध्रुव बाहरों आउंदा है, आके उतानपाद की गोद विच बैठ जाता है। इन्नी देर नूं इहदी मतरई मां हुंदी है, उत्तम की मां सुरुचि आउंदी है। वो ध्रुव नूं बाप दी ओदी गोद विच, राजे की गोद च बैठे होए नूं बाहों पकड़ के बाहर कढ़ दिंदी है। ते गल कहंदी तू इस गोद विच नहीं बैठ सकदा, इस गोद विच सिर्फ उत्तम बैठ सकदा है। 5 साल का बच्चा है, उन्होंने पता माँ मेरी कहती है तेरा प्यो है। जदों उस 5 साल के बच्चे नूं मतरई ने बाहर धक्का मारिया, भाई गुरदास साहब जी की पौड़ी है, मैं वो जी आपनूं सुणी, सच्ची मुच्ची बच्चा निमाणा जा हो गया। एक लफ्ज़ साडा वरदे सन, डड्डो लिका, भाई साहब ने वरते। उहदियां अखां च पानी आ गया, चेहरा जिवें बुझ जिहा गया। कदी प्यो वल देखे, कदी माँ वल देखे, भी मेरे नाल होया कि। बच्चा डड्डो लिका हो के अपनी माँ को आया, उन्हें 2 सवाल किए अपनी माँ नूं।
वो सवाल बड़े कमाल दे सन। कहंदा पहला सवाल ये सी, मैनू एक गल दस, तू इस थां ते बच्चे दे प्रश्न की ने, तू राणी है कि गोली है? उन्हें कहा पुत्त होया कि? देखियो सियाणी मां सी, उन्हें पता सी, वो भावना वाली सी। उन्हें कहा तू ये मैनू उत्तर दे मेरी मां, मैनू जन्म देने वाली है, तू राणी है कि इस घर च गोली है? उन्हें कहा पुत्र नहीं, मैं राणी हाँ। उन्हें कहा अगला सवाल है मेरा, जिस तख्त ते, जिस गद्दी ते मेरा बाप बैठा है, ये गद्दी ये तख्त मैनू किवें मिल सकता है? 5 साल के बच्चे का सवाल सी, जो गुरमत दे महान व्याख्याकार भाई गुरदास साहब ने लिखा, मैं उन्होंने कोट कर रहा, होर किसी ने नहीं। वो कहता मैनू दस ये राज भाग किवें मिलेगा? तो ये नाल ही उहदा सवाल सी भी जेड़े मेरे तो हेठ करते ने, मैनू नफरत करते ने, मां मेरी मैनू दस ये नफरत करने वाले मेरे कदी मित्र बन सकते हैं? मां सारी गल समझ गई, उन्होंने समझ पै गई। हुण अगली बेनती सुनियो। उन्हें दसता मैनू अज धक्का मारिया, मैनू अज गोदी चो दूजी मां ने बाहर कढ़ दिता। मैं कहना शाबाश उस मां दे सुनीति दे। उन्हें इक्को गल कही, कहन लगी पुत्र तेनू धक्के इस करके नहीं पे भी तेरे कर्म माड़े ने। चेते रखी मैं प्रेमा भगती नहीं कीती, जे मैं भगती कीती हुंदी तेनू धक्के क्यों पैंदे? ये मेरे करके पे आ, तेरे करके नहीं। तू तो राजे का पुत्र है, तू राजकुमार है, मेरे करके पे आ। उन्हें फिर पुत्र दे मन च ईरखा दी बीज नू मिटा के रख दिता। उन्हें कहा पुत्र ये राज दा बापू दा कह रहे हैं, एक राज नहीं करोड़ां राज तेरे पैरां च रुलणगे। एक काम कर, तू परमात्मा दी प्रेमा भगती कर, ये राज तां तेरे पिछे पिछे तुरेगा। मैं बेनती करा उस बच्चे दा अंदर मां ने किहड़े पासे मोड़ दिता? भाई साहब ने लिखिया कि ध्रू हसदा घर आया, कर प्यार प्यो कुछड़ लिता। तो ये अर्थां की लोड़ नहीं, साड़ी आम शब्दावली पंजाब दी। ध्रू हसदा कर आया, कर प्यार प्यो कुछड़ लिता, बाहों पकड़ उठा लिया, मन विच रोस मतरई कीता। डड्डो लिका मां पूछे, तू सावाणी है के सुरीता? डड्डो लिका हो गया, मां नूं पुछदा तू सावाणी है के सुरीता? मां कहंदी है सावाणी खां जन्म दी, मैं सावाणी खां, सावाणी खां जन्म दी, नाम ना भगती कर्म दृढ़ीता। मेरे बच्चिया मेरे कोल भगती नहीं, मेरे कोल सिमरन नहीं। जे ईरखालू हुंदी ते सौकण दे विरुद्ध बच्चे नूं पूरा पॉइजन कर दिंदी। पुत्र तगड़ा हो, आपां देखांगे, इन्हां नूं मारांगे, अंज करांगे। उन्हें कहा बच्चे दा अंदर अज सट वजी है, इस सट भी जे मैं मोड़ दियां संत भी बन सकदा है, इस सट जे किते मैं मोड़ दियां ते इस साकत भी ये दूजे पासे भी चल सकता है। माई ने कहा सावाणी का जन्म दी, नाम ना भगती कर्म दृढ़ीता। अगे ध्रू पुछदा किस उद्यम ते राज मिले, शत्रु ते सब होवन मीता। किस तरीके नाल मिले? अगे फिर मां कहती है परमेश्वर आराधी है, जिद्दों होई है पतत पुनीता। बाहर चलिया करन तप, तुर पिया घरों छड़ के, मन बैरागी होए अतीता। मन बैराग च आ गया, निर्लेप हो गया। माई ने अंदरों सब कुछ साफ करके रख दिता। बाहर चलिया करन तप, मन बैरागी होए अतीता। नारद मुन उपदेशिया, नाम निधान अम्यो रस पीता। पिछों सराजे सद्या, अवचल राज करो नित नीता। मैं सिर्फ एक उदाहरण लईए जिहदा जिक्र गुरु ग्रंथ साहिब च है, जिहदा जिक्र बड़ी वारी गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी च आया है। तो इन्हां चीज़ां नूं एवें नफरत की निगाह नाल ना देखिया करिए। जे प्रहलाद जी का जिक्र आया, क्यों नहीं सत्कार नाल कह रहे? जे ध्रू जी का जिक्र आया, जिन्हों मत्था टेकने आ, क्योंकि मैनूं इंज लगदा है भी साडे अंदर दी दवैश जो गुरु अर्जुन दे बाणी च ले गया, साडे अंदर दी दरवैश नूं बर्दाश्त नहीं करदी, पर बाहर तो डरदे होए माइकां ते बोलदे कोई नहीं प्रचारक, डर लगदा है अंदरों। तां ही तां फिर अंदरों बेप्रतीति है ना। इत्थे देखो, उत्थे बड़ा प्यारा बचन किया, पुत्र चल पिया। नारद ने
ये नारद चुगलखोर नहीं, एक याद रखो, एक ग्रंथ है नारद भक्ति सूत्र, वो भी पढ़ने वाला है। खैर उत्थे उन्हें क्या, पुत्र कितने चले हैं, उन्हें क्या मेरी माँ ने क्या उन्हें उपदेश दिता। जदों पुत्र तुरिया राजा उतानपाद उत्थे वेले कहंदा ओए सदो, बच्चा तुरिया जा रहा है, तो राजा कहंदा बेटा आ पकड़ तू राज कर, तेनू राज अद्धा दिता। वो माँ वाल देख के कहंदा वाह नहीं माँ मेरीए, अजे कुछ भी नहीं किया, तुरिया वां ते अद्धा राज मेरे पैरों च आ गया, तो मैं फिर इधर क्यों जाऊँ, उधर ही जाऊँगा जिदे तुरिया इन्ना कुछ मिल जाता। बचपन सी बच्चे का। भाई साहब ने लिखा पिछों राजे सद्या अबतर राज करो नित नीता, हार चले गुरमुख जग जीता। मैं अर्ज की एक वो बचपन है जिस बचपन भी समझ पै जाती है। मान लो आप घर बैठे हैं, बच्चे तुहाडे कोल ने, बेटियां ने, बेटे ने, पोते ने, पोतियां ने, दोते ने, दोतियां ने। ये सच ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਜਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਘਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੋਤੇ ਪੋਤੀਆਂ ਨਾ, ਇਉਂ ਸਮਝੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਜੋ ਕੁਝ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਤਲੀਮ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਚੰਗੀ ਤਲੀਮ ਉਸ ਦਾਦੀ ਤੇ ਦਾਦੇ ਨੇ, ਨਾਨੀ ਤੇ ਨਾਨੇ ਨੇ, ਪਿਓ ਤੇ ਮਾਂ ਨੇ ਦੇ ਦੇਣੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇੜੇ ਬੈਠਣ ਦੇ ਕੇ बच्चा बैठेगा कोल। हजूर ने कहा भी जे सिमरन नहीं बचपन गया, पर जिन्हों ने सिमरन किया उन्होंने बच्चों का जीवन वो नाम रस न भरे गए, क्योंकि बचपन निरछल सी, बाल बुद्ध सी, अंदर भरपूर हो गया। एक उदाहरण मैं आप जी नूं सिर्फ होर देंगा, चलो थोड़ा जिहा अज मैं इतिहास विचों लिया है, क्योंकि मन सी जे मैं ये प्रमाण दई जांगा बचपन व्यर्थ व्यर्थ तो कितने सुरत फिक्की जी ना पै जाए, तो इस करके भी जिक्र कर लीए भी जे भजन करेगा तो बचपन स्वीकार है, वो बचपन प्रवान है। आपनू पता होवे कि भाई साहब भाई गुरदास साहब जी ने ना जी, तो 6वें पातशाह तक गुरु नानक साहब तो लैके 6वें पातशाह तक कुछ सिखां दी सूची दिती है। कुछ सिख मैं क्या सारे नहीं, उन्हां दी नामावली दिती है, उन्हां दे नाम दिते आ, ते अद्धियां अद्धियां तुकां दे विच नाम दे के उन्हां दे जीवन नूं भी दस दिता कि हो जाए सन। जिवें मैं एक दिन बेनती की भाई मरदाने का जिक्र किया, तो भाई साहब ने लिखा भला रबाब वजाएंदा मजलस मरदाना मेरासी, मरासी शब्द वरत्या। दौलत खां का जिक्र किया, दौलत खां लोधी भला होवा जिंद पीर अबनाशी। अजिते रंधावे का ते बाबे बुढ़े का दोवें रंधावे सन, इन्हां दा एक तुक भी जिक्र किया, अजिता रंधावा भला कै बूढ़ा बुढ़ा एक मन त्यावै। उन्होंने जिक्र किए कईयां दे। हुण उहदे विच जिहड़ा जदों भाई साहब नाम लिखदे आ, इतिहास पढ़ो, भाई कान सिंह नाभा जी नूं पढ़ो, वो कहंदे आ गुरु नानक साहब दी पहली सिख बेबे नानकी। चलो उन्हां लिखिया, जदों भाई साहब ने नाम लिखे उन्होंने सब तो पहला बच्चे नूं थां दित्ती, जवान नूं नहीं। उन्हां दी वार दी पहली जिहड़ी पौड़ी है, उस पौड़ी दी पहली तुक है जिस विच उन्होंने जिक्र किया, 11वीं वार है जी। उहदे विच ओह कहंदे ने तारू पोपट तारिया गुरमुख बाल सुभाए उदासी। इत्थे शब्द है बाल जवानी और बिरधपुन। उत्थे वो लिखते आ तारू पोपट तारिया गुरमुख बाल सुभाए उदासी। तारू पोपट इनू तार दिता गुरु नानक साहब ने। किवें तारिया जी? कहन लगे कि गुरमुखताई ते उपरामता केवल जवानी जां बुढ़ेपे विच जिंदगी बतीत करन तो बाद नहीं आउंदी, जे रब मेहर करे ते बाल अवस्था दे विच भी उपरामता, बाल अवस्था दे अंदर भी गुरमुखताई आ जाती है। तो कह तारू पोपट तारिया गुरमुख बाल सुभाए उदासी, उपराम हो गया। आप सब नूं पता होना, क्योंकि अक्सर ये सुनाया जाता है। तो मैं बेनती करांगा इस साखी नूं बाबा बुढ़ा जी नाल ना जोड़िए। ये तारू किवें गुरमुख हो गया, क्यों उपराम हो गया? ध्रुवता उपराम होया, माँ ने मतरई ने धक्का मारिया। तारू नूं की होया?
ਤਾਰੂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਂ ਨੇ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਰੂ, ਭਾਈ ਤਾਰੂ। ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਰਥ ਕਰ ਲਿਆ ਜੇ। ਮੈਂ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਸਨਮੁਖ, ਖਲੋ ਜਾਂਦਾ ਬੱਚਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਜਿੱਥੇ ਚੱਲਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੱਚਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰੋਕ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੇਟਾ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਤੂੰ ਐ, ਸਰਦੀ ਤੇਰੇ ਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਤੂੰ ਨਾ ਮੀਂਹ ਵੇ ਨਾ ਹਨੇਰੀ ਵੇ ਨਾ, ਤੂੰ ਨੇਮ 'ਚ ਕੁਤਾਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਵਕਤ ਸਿਰ ਆ ਜਾਣਾ। ਤਾਰੂ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੱਡੇ ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਲੈ ਜਾਂਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੇਟਾ ਇਹ ਕੀ ਤੂੰ ਕਿਹਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਾਪੇ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਬੱਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਕਿੱਥੋਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਾਈ ਮੇਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪੋਚਾ ਲਾਉਂਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਕੋਠੇ ਲਿੰਬਦੀ ਪਈ ਸੀ। ਆ ਕੋਠੇ ਲਿੰਬਣਾ ਵੀ ਹੁਣ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਦੇ ਸਨ, ਮਿੱਟੀ ਪੁੱਟਦੇ ਕੁੱਟਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਕੋਠੇ ਲਿੰਬਦੀ ਪਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਵੇ ਤਾਰੂ ਆ ਚੁੱਲ੍ਹੇ 'ਚ ਅੱਗ ਬਾਲ। ਮੈਂ ਵੱਡੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਅੱਗ ਬਾਲਾਂ ਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗੇ ਨਾ। ਤੇ ਮਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੇ ਤਾਰੂ ਇਹ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਅੱਗ, ਵੱਡੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਨੂੰ ਟਾਹਣਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਲੱਗਣੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਤੋੜ ਕੇ ਲਾਈ ਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸੱਟ ਵੱਜ ਗਈ। ਮਣਾ ਟਾਹਣ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਅੱਗ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੀ ਏ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗ ਗਈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਟਾਹਣ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਣ ਤੇ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਤਾਰੂ ਤੂੰ ਕੁੱਲ ਤਾਰੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੂੰ ਉਪਰਾਮ ਬੈਰਾਗੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗੱਲ ਘਰ ਕਰ ਗਈ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਮਾਂ ਉਧਰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੁੱਧ ਪਿਆਉਂਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਲੱਗੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਟੀਵੀ ਦਿਖਾਣਾ, ਨਚਾਰ ਦਿਖਾਈ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਤਾਂ ਰਾਤ ਉਹਦਾ ਹੀ ਚੱਲਣਾ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਬੁੱਧੀ ਵੀ ਵਿਕਸਿਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣੀ। ਜੇ ਸੌਣ ਲੱਗਿਆਂ ਗੁਰੂ ਜਪਾ ਦਈਏ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਸਾਖੀ ਸੁਣਾ ਦਿਓ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੇ ਗੱਲ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਸੁੱਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਚਲੀ ਜਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਚਪਨ ਉਹ ਵਿਅਰਥ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਬਾਦਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਵਾਨੀ, ਇਹਨੂੰ ਜੋਬਨ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਵਾਨ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਜਵਾਨੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਹੀ ਨਸ਼ਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿ ਜੋਬਨ ਧਨ ਪ੍ਰਭਤਾ ਕੇ ਮੱਧ ਮੈਂ। ਜਵਾਨੀ ਇੱਕ ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਜਵਾਨੀ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਉੱਠਿਆ ਤੂਫਾਨ ਹੈ। ਜਵਾਨੀ ਇੱਕ ਉਹ ਤੂਫਾਨ ਹੈ ਹਵਾ ਦਾ, ਪਵਨ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾ ਉਡਾ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਜੋਬਨ ਵਿੱਚ ਇਬਾਦਤ ਜੁੜ ਜਾਏ ਬੰਦਾ, ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਸੇਵਾ ਜਿੰਨੀ ਬੰਦਗੀ ਪਰ ਜੋਬਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਪਿਆਰਿਓ ਬੁਢੇਪੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੰਨੀਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੁੰਦਾ, ਸਵਸਤ ਵਿਵਸਥਾ ਹਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਮੱਧ ਅੰਤ ਪ੍ਰਭ ਜਾਪਣ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਵਾਨੀ ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਿਤੇ ਸਾਂਭਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਬਚਨ ਕਹੇ, ਜਿਹੜੀ ਜਵਾਨੀ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੋ ਕੁਝ ਆਪਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਤੇ ਇੰਨਾ ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਜੀ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਸਾਡਾ ਦਾਇਰਾ ਉਹੋ ਜਿਹਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜਵਾਨ ਨੂੰ ਕਿੱਧਰ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ? ਨਸ਼ਾ, ਬੰਦੂਕ, ਟਕਵਾ, ਕਚਹਿਰੀ, ਇਹ ਕੀ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਜੀ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਢਾਡੀ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੀਤਲ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨੀ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਲਿਖੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਗਏ, ਢਾਡੀ ਕੀਰਤਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਘਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਠਹਿਰੇ ਸਾਂ, ਸੀਤਲ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਢਾਡੀ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੀਤਲ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅਲੋਪ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
फिर बेनती सी नूं, गीत गाउणा नहीं, ढाडी कला। सिर्फ 3 जने 4 जने हुंदे सन। जथेदार दे हत्थ 'च श्री साहिब हुंदी सी, एक सरंगी वाला, 2 ढड्डां वाले हुंदे सन, 5-5 ते बंदे ढाडी कला 10-10 ते हुंदे ही नहीं सन। ते ललकारे नहीं सन मारदे, हांगरे नहीं सन मारदे स्टेज ते, गुस्सा ना करियो कोई। इन्ने टिके हुए उन्होंने जिहड़े अपनी जीवनी च गल लिखी, वो कहंदे असीं कीर्तन करन गए, ढाडी कीर्तन करन गए, जिस घर च असीं रुके ते उत्थे ननान भरजाई सन। ते भाई शीतल साहब कहंदे ने कि उन्हां गुड्डियां दी उम्र कोई 1-2 साल का फर्क होना ननान भरजाई च, जां हम उम्र सन। वो कहंदे ने जदों वो मेरे साथियां नूं बुलाना, उन्हां खाण पीण लई कोई देना ते कहना वीर जी, ते जदों मैनू बुलाना ते बाबा जी। कहते मैं उत्थे रात सोचा भी मेरे साथियां दी उम्र भी इन्नी ते मेरी उम्र भी इन्नी कि ना बीबियां दी उम्र, ते मैनू बाबा जी कहंदियां ने, इनू वीर जी कहंदियां ने, ते मन च है तेनू बाबा जी तां कहंदियां ने ना, तू जथेदार है। कहंदा उस रात शीतल साहब कहंदे ने गल लिखनी बड़ी ढिड तो बस्तर चुकण वाली गल है। उस रात इक्को अरदास कीती, दाता मेरे साथी मेरे उम्र दे, ये बच्चियां मेरे उम्र दियां, पर मैनू बाबा जी कहंदियां ने इस जवानी विच लफजे मेरे लिए बाबा वर्दियां ने, किरपा करी इस बाबे शब्द उत्ते कदी छिट्टे ना पैन दे। मैं बेनती करां को भी जवानी है जिहड़ी इस भै च जिउंदी है। किन्नियां कु उदाहरणां दियां। बाबा अजीत सिंह चढ़दी जवानी च ने, भाई तारू सिंह भर जोबन विच ने, शाहबाज सिंह जिहड़ा चढ़दी जवानी विच है। एक नहीं अनेकां ने साडे सिख इतिहास विच भी। इत्थे मैं बेनती करांगा, बाबा फरीद कहंदा है कि जवानी च मौत हो जानी कोई गल नहीं, चली जाए जवानी, कोई फिक्र नहीं, पर सब तो वड्डा फिक्र मैंने को खाई जा रहा है कि जवानी मेरी नूं वकार ना किते खा जाए। तू किरपा कर मैं जोबन विच तेरी इबादत करा। उन्हां दा सलोक है, जोबन जांदे ना डरां, नहीं जवानी दा डर कोई। मैं हुण दूजा पक्ष ले लिया जी, एक जवानी दा वो पक्ष जिहड़ा अजकल असीं देखने पंजाब विच। महाराज कहंदे जोबन जांदे ना डरां, जवानी दा नहीं डर, पर इक्को डर है जे शह प्रीत ना जाए, वैगुरु तेरी प्रीत ना हिरदे चले जाए। क्योंकि कित्ती जोबन प्रीत बिन सुक गए कमलाए। किन्नियां जवानियां ने जिहड़ियां रब दी इबादत तो बिना इस तरह सुक गईयां जिवें जड़ां दे सुक्कण नाल रुख सुट जाते हैं। एक होर बाणी च उदाहरण है, मैं अर्ज कीती जवानी च गुरु नानक साहब दा श्लोक 12 ते वधीक च पहला श्लोक है। वो श्लोक है, ओ तंगी पैहोरी गहरी गंभीरी, सतसुड़ सुइया किव करी, निवन न जाए थणी। उदाहरण महाराज की देंदे आ, कहंदे ने भी उच्चे कद वाली भरवी जवानी वाली, मेरे लफ्ज़ां वल ध्यान दिया जे, उच्चे कद वाली भरी जवानी वाली, ओनू ओदी सहेली पुछदी उस औरत नूं, तू सस अगे झुकदी नहीं, तू मत्था नहीं टेकदी। पहला सी जी साडे समय, अजे भी साडे बजुर्गां च घरां च वेखण नूं मिलदा सी वड्डे दे पैरी पैना। हुण इन्ना कहण लग पए नहीं पैरी नहीं पैना किसी दे, तू सिख है। वो आंदा चंगा हुण पैरी नहीं पैंदा, हत्थी भां करांगा। फिर वो हत्थी पैण वाला सिस्टम हो चुका है। पुराने समय बजुर्गों के पैरी हत्थ लाते सन, ਨੂੰਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੂੰ मिलना उन्हें पैरी हत्थ लाना। ਇਹਦਾ अर्थ ਇਹ ना कर दी भी वो बजुर्ग ਜਿਹੜਾ गुरु नानक बन गए। ਜਿਹੜਾ समाज का सिस्टम है जिस सानू सिखाया गया ये हुण है नहीं दिसदा नहीं। हुण बाबा जी ने कहा भी सस नहीं झुकी नहीं, सहेली ने कहा नहीं तू अपनी बजुर्ग सस अगे झुक जाया कर, खा किन्नी सियाणी तेरी सस है, मां तो वध तेनू प्यार दिंदी। वो जोबन च मत्ती ने कहा, कहंदी है की चका बुढ़ी अगे, मेरे सीने का भार इन्ना कि मेरे तो झुकिया ही नहीं जाता। महाराज गुरु नानक साहब कहंदे ने उस गुरमुख सखी ने उत्तर दिता, नहीं जवानी का मान करने वालीए, इत्थे वो किले मिट्टी हो गए जिहड़े पहाड़ां की तरह पक्के चूने नाल बने हुए सन। बंदा अंदरों झुकदा नहीं, हंकार इंदा जवानी का। महाराज ने फरमाया, उतंगी पायहोरी गहरी गंभीरी, ससड़ सुइया सिव किव करी, निवन ना जाए थणी।
निमन ना जाए थानी अगो। फिर कहते गच जे लगा गिड़बड़ी सखिए धौल हरी से भी ढेंदे डिठ में मुंद ना गर्भ थनी। तू कादा जो बंदा मान पे करनी। मैं बेनती करा बचपन वो जड़ा साईं दी याद च गुजरे, जवानी वो जड़ी रब दे भै ते इबादत विच गुजरे। तीसरा शब्द गुरुदेव ने वरत्या बिरथ, बाल जवानी और बिरध फुन बजुर्गी बुढ़ेपापन। हुण इत्थे मन च आएगा भी बुढ़ेपे च वैसे तजर्बा बड़ा हुंदा है, बुढ़ेपे च हुकूमत करन दा बड़ा स्वाद हुंदा है, बुढ़ेपे च खौमे घर च लड़दी है। मैं घर बनाया, मैं इन्ना कुछ कीता कि मेरे सामने ने वो अगले नवे पत्ते आउंदे ने। भाई साहब लिखते वीर सिंह टाली दे पत्ते जदों झड़न लगदा दिल करदा झड़न नूं, ते पिछलियां जिहड़ा आउणा आवाज़ मार के कहंदे ने बाबिओ थां खाली करो, असीं नविआं ने आके बहना। वो कहंदे ने क्यों असीं तां इन्ने चिर दे लगे, ते पिछले आउण वाले कहंदे ने जाओ जाओ तुसीं भी तां अगलिआं नूं तोरिआ है ना। बस आई एक संसार दी खेड है। पर बुढ़ेपे च खिज जाना, अपने तजर्बा अपनी हुकूमत ना चलनी, बंदा उदास हो जाता। जिन्हें सारी जिंदगी हुकूमतां कीतियां हुण अफसरशे कीती होवे, चेते रखो अक्सर बंदे रिटायर होंदियां कई बीमार होना शुरू हो जाते, क्योंकि वो अंदर रस नहीं मिलता हुकूमत वाला। पर गुरु घर च बेनती करांगा, एक वो बजुर्ग जिन्हों असीं धन गुरु अमरदास महाराज कहने, जिस उम्र च लोग रिटायर होंदे आ, इस उम्र च उन्होंने काम शुरू किया। 12 साल गागर ढोई, एक दो दिन नहीं, पर इस करके नहीं ढोई मैनूं गुरगद्दी मिलनी है। उस बजुर्ग दी उस कीती हुई कमाई नूं कली इतिहास नहीं, गुरु ग्रंथ साहिब विच एक सवैया मैं कह के आपां संपन्नता करांगे, टाइम हो चलिया। महाराज कहंदे ने इन्नी कमाई कीती तैं पढ़ियो एक मन धरियो, एक कर एक पछाणियो, नैन बैण मोह एक एक दो ठाए ना जाणियो, सुपन एक प्रतख एक इकस में लीणो, 30 एक अर पंच सिद्ध 35 ना खीणो, इक्कों जे लाख अलखों लख है, एक एक कर वरनियो, गुरु अमरदास जाल भणे तू एक लोड़ा एक मन्नियो। एक दी पढ़ाई की, एक नूं मन च वसाया, तेरे नेत्रां च एक, तेरे कन्नां च एक, तेरी रसना च एक, तेरे सुपन च एक, तेरे जागरत च एक। क्योंकि कमाई इन्नी कीती महीने दे 30 दिनां च, 5 तत्तां दे संसार च, ते गुरमुखी दे 35 अखरां विच उस अलख नूं तू लखिया जिन्हों लखां जीव भी लख नहीं सके। उन्हां ते बुढ़ेपा भी आया। पर गुरु तेग बहादुर साहब कहंदे ने भलिओ बचपन बीज जे पुंगरदा पिया, जवानी च रुख ऐ मुकम्मल हुंदा पिया, बुढ़ेपे च फल लगन लगे आ। ये बीज इन्ना कुछ चंगा बन जाए, शाम ही दे फल भी दे, पर जे बंदगी नहीं, फिर गुरु तेग बहादुर साहब कहते तिन्ने वेस्ट, तिन्ने व्यर्थ, किसे काम नहीं अकार्थ। बाल जवानी और बिरद फुन, 3 अवस्था जान, कहो नानक हर भजन बिन, बिरथा सब ही मान, सिमरन तो बिना ये तिन्ने ही व्यर्थ ने। ना बचपन का खेड़ा, ना जवानी का जोबन, ना बुढ़ेपे का तजर्बा, किसी भी अर्थ नहीं जे इबादत नहीं। तो इनियां को बेनतियां स्वीकार करियो। कल नूं अगे बचन 2 पढ़ांगे, करनो हो तो सो ना कीहो, परियो लोभ कै फंद, जो करना सी वो कीता नहीं, जो नहीं सी करना बस वो कर बैठे। नानक समयो रम गए हो, अब क्यों रोवत अंध। आओ गुरु चरना सारे अरदास करो।